So, good evening everyone. In the last class, we have studied the primary sedimentation tank और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में हमने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया था एज वेल एज वी हैव सीन द डिज़ाइन डेटा, राइट, और न्यूमेरिकल्स भी कुछ देख लेते हैं किस तरह से एफिशिएंसी ऑफ टैंक कैलकुलेट करते हैं। ये स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी आई थिंक सो। तो जैसे आपको गिवन है पार्टिकल साइज, सेटलिंग वेलोसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पार्टिकल साइज एंड क्वांटिटी ऑफ दैट पार्टिकल साइज इन परसेंटेज टू दी सस्पेंडेड सॉलिड, राइट। तो इसमें जो भी स्टैंडर्ड सेटलिंग वेलोसिटी है दैट इज योर ओवरफ्लो रेट, ओके, दैट इज 0.35 mm पर सेकेंड। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी पार्टिकल साइज है दैट इज योर स्टैंडर्ड पार्टिकल साइज, ओके। सो वी हैव डिस्कस दिस थिंग। Greater than this size 0.4 means that is 0.5 and 0.6, this will settle 100%, ठीक है। अब वो किसी भी डेप्थ पे प्रेजेंट हो डजंट मैटर, these particle will settle 100% or fully, but this lesser size particle 0.1, 0.2 and 0.3 will settle but not fully. These particle will settle partially, right? तो कितना पार्शियली वो आपको रेशियो पता चलता है, कॉरस्पॉन्डिंग सेटलिंग वेलोसिटी डिवाइड बाय द ओवरफ्लो रेट, इस तरह से। और व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस विद द परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी एंड यू विल गेट द एफिशिएंसी फ्रॉम द टोटल 1000 into 100, ओके। न्यूमेरिकल का देख लिया था। वैसे डिजाइन डेटा के स्टेप्स हमने देख लिए थे कि ओवरफ्लो रेट कितना होना चाहिए, दिस मच Q is given to you, overflow rate is a standard thing that you will opt, okay. Then after this, with this help we can easily calculate the surface area or plan area. Surface area is what? B into L. Now detention time we assume for plain sedimentation 4 to 8 hour, for population with sedimentation 2 to 4 hour. Then volume of tank is discharge into the time, okay. The volume will be equal to LB into H. So depth H is equal to volume over surface area, which is B into L, okay. This is the length to width ratio is adopted. L by 4 is equal to 2 to 4, okay. Length is 4 times of width or 3 times of width generally. Design discharge is 1.8 times of the average discharge, okay. These are some points, important points that we have discussed in the last class. वर्टिकल टाइप भी हमने डिस्कस कर लिया था कि इस तरह से वर्टिकल टाइप होता है, यहाँ से काइंड ऑफ फ्रस्टम, सिलेंडर फ्रस्टम, और यहाँ से वाटर इस तरह से जाता है और रेडियली आउटवर्ड जो है ये यहाँ से फ्लो होता है एंड देन इट विल सेटल, और स्लोप्ड बॉटम बनाया है जिससे ये नीचे जाके कलेक्ट हो जाएगा, ओके। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, ये डिस्कस किया था हमने। वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक d square 0.11 d plus 0.785 h is the diameter of tank. After this numerical एक था ये, discharge is given to you, settling velocity is given to you in this question, okay. Specific gravity is 2.65 of particle is given to you. Kinematic viscosity 0.01 centimeter square per second is given to you. And velocity of flow Vf is given to you 1.22 centimeter per second. So what is to be find? What size of the particle आपको जो है find करना है basically. Vs settling velocity is equal to g minus 1 d square gamma. Gamma क्या होता है? Unit weight that equal to rho into g divided by the 18 gt. Okay. This is you can say this is the dynamic viscosity.
Retention time, if you put here the kinematic viscosity, then you have to write here the rho into g, and rho become in denominator. Okay, if you write here the kinematic viscosity, then यहाँ पर जो है आपका गामा नहीं आएगा, इट विल ओनली जी. ओके, क्योंकि आपको पता है डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू, सॉरी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय द डेंसिटी. So retention time is length over row velocity or depth over the setting velocity. तो यहाँ से Vs इक्वल टू हो गया hp over L, Vf, h and L. All thing you have just given the question 3.5 meter deep and 65 meter long. So settling velocity आपके पास आ गई. Settling velocity you have, the one thing you don't have, that is d, size of the particle, that you can easily calculate. Now coming to the next topic is coagulation aided sedimentation. Okay, earlier what we have discussed, that is plain sedimentation. Okay, now this term is sedimentation with coagulation. मतलब sedimentation तो है ही, बट आप नॉर्मली ग्रेविटी से सेटल नहीं करवा रहे हो, उसके साथ साथ आप कुछ ऐसा केमिकल्स ऐड कर रहे हो, एक कोगुलेंट एजेंट ऐसे यूज कर रहे हो, कोगुलेंट्स यूज कर रहे हो, जिसकी मदद से उसमें फ्लॉक्स बन रहे हैं, पार्टिकल का साइज इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि एक प्रेसिपिटेट बनता है उस केमिकल के मिलाने से, जो प्रेसिपिटेट जाके चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है पार्टिकल पे, तो पार्टिकल का साइज जो है वो बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, और वो इजीली कम टाइम में ड्यू टू द ग्रेविटी सेटल हो जाता है. तो है तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस ही, कंसेप्ट इज सेम, प्रिंसिपल इज सेम, बट द पॉइंट इज वी आर एडिंग सम केमिकल टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ओरिजिनल पार्टिकल, so that the particle may settle in less time, right? थोड़ा रीड करते हैं. efficiency of the sedimentation is comparatively less if water consists of a fine suspended particle. Hence, in order to increase the efficiency, okay, get this point, in order to increase the efficiency, coagulation aided sedimentation is adopted, and it is carried out in 3 stages. Basically, coagulation is the fast mixing, flocculation is the slow mixing, and next process is sedimentation. Sedimentation, that we all know, the thing which we want to know, or we are going to know, that is coagulation and flocculation. Okay, first, what is the coagulation? Coagulation is the process in which certain chemicals termed as coagulant are added in water in order to neutralize the negative protective charge present over the suspended impurity, so as to increase their opportunity to come in contact with each other, thus grow in size and get easily settled. Suspended impurity जो है, that are carry generally the negative charge. Due to the same negative charge, ये जो particles हैं वो आपस में repel करते हैं, आपस में they are not meant to stick to each other, but they are repelling each other. So what we do, we are adding coagulants, or due to that coagulant is do some work by which this negative protective charge is neutralized, और ये न्यूट्रलाइज होने के बाद ये पार्टिकल्स आपस में आके जो है ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और अपना साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, राइट? Suspended solid are 90% are inorganic, having the charge. Okay, so next point is, in order to neutralize the negative protective charge over the suspended impurity, certain minimum energy is required. That minimum energy is called as threshold energy, which is provided by inducing fast mixing in the process. तो क्या करते हैं कि फास्ट मिक्सिंग करी जाती है, फास्ट मिक्सिंग करने के लिए कोगुलेंट यूज कर रहे हैं. कोगुलेंट नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है. कैसे न्यूट्रलाइज कर रहा है? क्योंकि जो कोगुलेंट हम केमिकल डाल रहे हैं वो जाके रिएक्ट करता है इन सस्पेंडेड इम्प्योरिटी से, और वो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाता है. उसके बाद ये इजीली फ्लॉक्स बन जाते हैं और ये इजीली सेटल हो जाता है. अब जो कोगुलेंट्स हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है आपका एलम.
जनरली जो यूज होता है वो एलम यूज करते हैं, ठीक है, सस्ता है, चीप है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव और इजीली अवेलेबल भी है। तो इस केमिकल नेम इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट। दिस इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट। हाइड्रेटेड मतलब वाटर एडेड इसमें, एल्यूमिनियम और सल्फेट आपको दिख ही रहा होगा इसमें। ओके, शॉर्ट नेम वेरी फेमस, दैट इज एलम। Alum react with alkalinity present in the water and result in the formation of sticky gelatinous precipitate PPT of aluminum hydroxide। AlOH3 का precipitate बनता है जब आप एलम मिलाते हो किसमें, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज में। गॉट इट? तो ये कहना चाह रहे हैं। और ये क्या करता है, एलम जो है आपका एल्केलिनिटी जो भी प्रेजेंट है वाटर में उससे ऐड होता है, उससे रिएक्शन करता है। इस पॉइंट का ये मतलब भी आप ले सकते हो कि एल्केलिनिटी प्रेजेंट होनी चाहिए वाटर में अगर आपको एलम यूज करना है। अगर आपका वाटर मोर एसिडिक है, एसिडिक नेचर का है आपका वाटर, आपने पीएच टेस्ट करा एंड यू फाउंड दैट योर वाटर इज हैविंग पीएच लेस देन 6 और एसिडिक नेचर, तो एलम इफेक्टिव नहीं होगा, एलम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। सो एल्केलिनिटी से ही वो वर्क करता है। तो समटाइम्स इफ वी वांट टू यूज एलम एज अ कोगुलेंट, वी हैव टू इंट्रोड्यूस alkalinity in the wastewater manually or artificially before adding this into water। okay, तो AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनता है। लेट्स सी द रिएक्शन। Al2SO4 3 into 18H2O alum added with the alkalinity, that is calcium hydroxide slag line, it gives you AlOH3 twice sticky gelatinous PPT एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाता है, प्लस 3CSO4 कैल्शियम सल्फेट मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और 18H2O ये होता है। ठीक है, तो एल्केलिनिटी से रिएक्ट करता है और आपको एसिडिटी देता है। मतलब एल्केलिनिटी तो इसको चाहिए रिएक्शन करने के लिए, बट ये रिएक्शन करने के बाद जो वाटर है वो एसिडिक कर देता है। प्लीज नोट दिस पॉइंट। ठीक है, वाटर को क्या करता है, एसिडिक कर देता है, मतलब वाटर में एसिडिटी इंक्रीज कर देता है एलम। ये इस तरह का क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वन लाइन में क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। से जो है चार्ज यूटिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे शो करी है आपको। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दिस पॉइंट। Above process also tend to increase the acidity। CO2 इमर्ज हो रही है उसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, एंड हार्डनेस इन दी वेस्ट वाटर, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट क्या है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्डनेस ओनली। तो एलम अगर आप ऐड कर रहे हो तो एलम ऐड करके आप क्या पा रहे हो, एक तो आपकी एसिडिटी इंक्रीज हो जा रही है वाटर की, और एक आपकी टेम्परेरी हार्डनेस इंक्रीज हो जा रही है, राइट। तो ये एलम करता है। तो दिस इज द सिंपल which representing that कि how efficiency suffers, how efficiency varies when you going to increase the doses of alum or amount of alum significantly और continuously। अगर आपने जो है इसका एलम का डोज आपने बढ़ाया, ओके, तो लेटेस्ट से आपने A, B पॉइंट, C पॉइंट पर आपने एलम ऐड करा बेस वाटर में, तो एक सर्टेन पॉइंट तक, क्वांटिटी तक तो ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी कि आपने बेस वाटर में आपके पार्टिकल्स थे, आपने एलम ऐड करा, चार्ज यूटिलाइज हुआ, प्रेसिपिटेट वगैरह बना और वो नीचे सेटल हुआ। बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद, एक ऑप्टिमम पॉइंट के बाद आप अगर फर्दर एलम ऐड करते ही जाते हो, कंटिन्यूसली अगर एलम ऐड कर रहे हो, तो एलम itself considered as the what, impurity, itself considered as the suspended solid, suspended impurity। क्योंकि जितने भी वहां पे सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज थे वो तो आपने सेटल करवा दिए एलम ऐड करके, उसके बाद भी हम एफिशिएंसी मैक्सिमम पहुंच गई है ना, उसके बाद भी देखो अगर आपने यहाँ से डी के बाद डोज इंक्रीज करी तो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा जो आप एलम ऐड कर रहे हो खुद सस्पेंडेड सॉलिड की तरह वर्क करेगा और वाटर को क्या करेगा, टर्बिड करेगा, राइट। तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होने के बाद आप उसमें एलम ऐड ना करें, अगर आप करते हैं तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ वर्क, एफिशिएंसी विल डिक्रीज। तो स्टैंडर्ड लिखा गया कि नॉर्मल डोजेज ऑफ एलम इन द रेंज इज 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, तो नॉर्मली
10 से 30 मिलीग्राम पर लीटर रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते। एलम रिमूव्स टेस्ट, कलर एंड ऑर्डर फ्रॉम द वाटर। रिमूव करता है ऑर्डर, because all source of the taste, order or color is depend upon the suspended solid, right? तो कैसे कह रहे हैं कि ये ऑर्डर कलर रिमूव करता है? बिकॉज ऑर्डर कलर ये इंट्रोड्यूस होता है वेस्ट वाटर किसकी वजह से? इम्प्योरिटी की वजह से, सस्पेंडेड इम्प्योरिटी की वजह से। अगर आप सस्पेंडेड इम्प्योरिटी आप रिमूव कर रहे हो, एलम क्यों डाल रहे हैं कि मैं रिमूव करनी, अगर आप इसे रिमूव कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका कलर भी रिमूव हो जाएगा और ऑर्डर भी रिमूव हो जाएगा, राइट? एलम वर्क्स इन द पीएच रेंज ऑफ 6.5 टू 8.5। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने कहा था कि एलम को वर्क करने के लिए एल्कलिनिटी चाहिए होती है, एसिडिक वाटर नहीं होना चाहिए। तो जनरली जो पीएच रेंज आप रखते हो एलम आप डालने के लिए, मिक्स करने के लिए, that is 6.5 to 8.5. Next point is large amount of sludge is formed due to the addition of alum. तो काफी स्लज बनता है। क्वांटिटी which can be computed as follow। तो क्वांटिटी कंप्यूट करने के लिए ये रिएक्शन आप लिख रहे हैं दोबारा, इसका फिर मॉलिक्यूलर वेट आप मोल्स के टर्म्स में निकाल देंगे तो पता चलेगा कि कितना एलम आप डाल रहे हैं, कितने ग्राम एलम आप डाल रहे हैं और उससे हमको कितना ग्राम प्रेसिपिटेट मिल रहा है, so that you can have a mathematical idea, right? तो रिएक्शन सेम, एलम प्लस राइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, इट गिव्स यू द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये हार्डनेस प्लस 6CO2 प्लस H2, ओके। तो 1 मोल, इसका भी 1 मोल है, इसका 3 मोल है और इसका 2 मोल है। मोल का मतलब होता है कितना टाइम्स इस कंपाउंड का आपने यूज किया है ना, यहाँ पर 1 3, राइट? मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेंगे इसका, तो इट इज कमिंग 666 ग्राम, इट इज कमिंग 486 ग्राम इंटू 3 वट एवर, बट इज कमिंग 156 ग्राम, 2 मोल है, ठीक है। तो 666 ग्राम ऑफ एलम गिव्स यू 156 ग्राम ऑफ द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट, राइट? और यहाँ पे 1 मोल ऑफ एलम रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ दिस alkalinity to give the 2 mole of ppt of this much, or 666 gram of alum when reacts with the 486 gram of calcium carbonate और कैल्शियम हाइड्रो कार्बोनेट, हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट, दोनों जब आप इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो इसका आ रहा है 486 और इसका आ रहा है 300। तो 666 ग्राम एलम अगर आप मिला रहे हो 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, तो आपको कितना ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है? 156 ग्राम। तो अगर आप 1 ग्राम एलम मिलाते हो बेस वाटर में, जो कि 0.45 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, आपको कितना ग्राम प्रेसिपिटेट देगा? 0.234 ग्राम। 1 ग्राम एलम अगर आप मिलाते हो तो प्रेसिपिटेट आपको मिल रहा है कितना? 0.234 ग्राम in terms of aluminum hydroxide. Some another coagulant we can use, another name is copper or hydrated ferrous sulfate, FeSO4 into 7H2O। इसके बारे में तो पॉइंट इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। कॉपर वर्क्स एज इफेक्टिव कोगुलेंट व्हेन द यूज इन द कॉम्बिनेशन विद लाइम। तो लाइम के साथ अगर इसका यूज करते हो तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद अल्कलिनिटी present in the water and result in the formation of PPT, litmus PPT of ferric hydroxide, ferric hydroxide thus grow in the size and get easily settled। तो alkalinity इसके लिए भी चाहिए, कॉपर के लिए भी चाहिए, जैसे एल्यूमिनियम में था। इसमें जो आपका वहाँ पर प्रेसिपिटेट बन रहा था वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बन रहा था, यहाँ पर जो आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है किसका बन रहा है? देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH3, ये ओके। Doses of copper is same as that of alum in 10 to 30 milligram per liter, but it is comparatively cheaper than the alum। ये alum से भी cheaper होता है, so we can use this। It is not used for treatment of colored water। So basically alum कलर को भी कम कर रहा था, ये कलर को उतना इफेक्टिवली कम नहीं कर पाता है। तो नॉर्मली अगर हमें कलर भी कम करना है, ऑडोर भी कम करना है, एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटी तो कम करनी ही है, तो हम जनरली प्रीफर क्या करते हैं? एलम करते हैं, ठीक है। इट वर्क्स इन द पीएच रेंज ऑफ 8.5 एंड अबव। ये 8.5 और 8.5 से ज्यादा में यूज होता है, ओके। नेक्स्ट इज क्लोरीनेटेड कॉपर एस। इसके बारे में भी आप देख सकते हैं तो पॉइंट, क्लोरीनेटेड कॉपर एस इज फाउंड बाय एडिशन ऑफ क्लोरीन
in copper ash. Ferric chloride is used to independently use as coagulant. It works in the pH range of 3.5, 6.5, and above that 8.5. When ferric sulfate is used independently as coagulant, it works in the pH range of 4 to 7 and above 9. Hence, chlorinated copper is works in the wide range of pH. तो wide range of pH में यूज करते हैं इसको, ठीक है। अगर pH आप कंट्रोल नहीं कर सकते ज़्यादा, आपको एल्कलिनिटी आर्टिफिशियल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। Another name is sodium aluminate. Reacts with the calcium and magnesium ion present in the water and result in the formation of sticky precipitate which attract fine impurities and get settled, right? So this is sodium aluminate. These are the impurities. You will get the precipitate here, and you will get the salt here. NaCl, NSO4, all are the salt. These are the comparison in the sodium flux and the iron flux. Na2Al, Al2O4 they put hardness also, but all previous covalent introducing hardness. तो जो भी आपने covalent पहले पढ़े, copper as copper, alum, सारे के सारे जो भी आपके covalent थे, वो हार्डनेस इंट्रोड्यूस कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। इनफैक्ट सोडियम एल्यूमिनेट क्या करता है, आपका हार्डनेस को डिक्रीज करता है, ये ध्यान रखना है आपको। इट डज नॉट रिक्वायर एल्कलिनिटी, और इसको रिएक्शन करने के लिए एल्कलिनिटी भी रिक्वायर नहीं है। ऑल्सो गुड पॉइंट। द बॉटम, ठीक है, इट इज जनरली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बॉयलर फीड वाटर, ओके, क्योंकि एक्चुअली ये चीपर नहीं है, इट इज बिट एक्सपेंसिव देन दी एलम। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बॉयलर के लिए यूज़ कर लेते हैं छोटे छोटे, ठीक है। कॉस्टलियर देखिए लिखा है यहाँ पे, कॉस्टलियर देन एलम। इट वर्क्स एट pH रेंज, एल्कलिनिटी नहीं चाहिए नॉर्मली, ए न्यूट्रल नॉट एसिडिक, 6 to 8.5 pH में वर्क करता है, ठीक है। इसके तुलना में अगर कंपैरिजन में आयरन फ्लॉक्स की बात करें, आयरन फ्लॉक्स आर हेवियर देन द एल्यूमिनियम फ्लॉक्स। आयरन फ्लॉक्स कहाँ बने थे, कॉपर एस में बने थे ना, ठीक है। तो आयरन फ्लॉक्स, एल्यूमिनियम फ्लॉक्स आपके एलम में बने थे, यहाँ बने। तो आयरन फ्लॉक्स क्या होते हैं, हैवी होते हैं। आयरन फ्लॉक्स आर फॉर्म्ड अर्लियर देन द एल्यूमिनियम फ्लॉक्स, तो जल्दी बन जाते हैं। कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। आयरन सॉल्ट्स वर्क्स इन द वाइड रेंज पीएच। आयरन सॉल्ट्स आर चीपर देन salts. Alum is used for the treatment of water supply and iron salts are used for treatment of sewage. Okay, ज़्यादा इफेक्टिव सीवेज कौन सा, आयरन फ्लॉक्स है, और कम इफेक्टिव कौन सा आपका एल्यूमिनियम फ्लॉक्स, ठीक है। Demerits भी iron flux. See, iron salts lead to growth of iron bacteria that causing pitting and tuberculation in the pipe. वो नीचे जम जाता है, वो स्टिक हो जाता है, और वहां से जो है पाइप का डिस्चार्ज कम हो जाता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग द आयरन सॉल्ट एज द क्वालिटी, ठीक है। सो वी विल गो थ्रू दिस न्यूमेरिकल ऑफ alum and understand how we'll calculate the doses. After this, we'll move to the flocculation, mixing, and numericals. ये न्यूमेरिकल एक कम कर लेते हैं दिस क्लास। इंट्रो न्यूमेरिकल पढ़ो। Coagulation treatment plant with flow of 0.5 meter cube per second is dosing alum at the rate of 23 milligram per liter. alum का जो रेट है एडिशन का, that is 23 milligram per liter. No other chemical is being added like calcium, magnesium वगैरह वगैरह. Raw water suspended solid concentration is 37 milligram per liter. Effluent solid concentration is 12 milligram per liter. तो 37 आया सस्पेंडेड सॉलिड और 12 उसमें से निकल गया आगे नेक्स्ट टैंक। तो जो भी टैंक में इस टाइम मौजूद है दैट इज 37 माइनस 12, और इसको ट्रीट आप कर रहे हैं किससे, 23 मिलीग्राम पर लीटर अपने एलम से, राइट। ओके, सॉलिड कंटेंट ऑफ द स्लज इज 1%, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्लज इज 3.01,
what volume the sludge must be disposed per day from the treatment। LM यूज करना है, कितना स्लज पर डे आपको फेंकना है, डिस्पोज करना है, वो आपको पता लगाना है। ठीक है, डिस्पोज क्या करोगे आप, स्लज डिस्पोज करोगे। और स्लज कैसे बन रहा है, एलएम के ऐड करने से बन रहा है, प्रेसिपिटेशन से बन रहा है। दिस इज द डायग्राम बाय विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि क्यू इज कमिंग हियर इनलेट, डिस्चार्ज देखिए यहाँ पे आ रहा है 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन ऑफ दिस इज 37 मिलीग्राम पर लीटर, एफिलेंट कंसंट्रेशन इज 12। ओके, तो नीचे कितना आया आपका 37 माइनस 12, 25 आई थिंक। एलएम आपने ऐड करी 23 मिलीग्राम पर लीटर, यहाँ पे स्लज बना और स्लज को आपको डिस्पोज करना है। ठीक है, तो लेट अस गो। तो पहले तो आप निकालोगे कि कितना सस्पेंडेड सॉलिड सेटल होना है, तो कैसे निकालोगे, 37 मिलीग्राम माइनस 12, ओके, इतना टैंक में रहा पर लीटर, इतना सस्पेंडेड सॉलिड जनरेट हो रहा है पर लीटर, और हमारे पास कितना लीटर पानी है, कैसे निकालेंगे, वी हैव क्यू 0 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मीटर क्यूब को जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो भाई ये तो हो गया, तो 500 लीटर पर सेकेंड तो हो गया। अब आपको निकालना है पर डे में, तो कैसे निकालेंगे, तो पर सेकंड को आप चेंज करोगे पर डे में, तो आपको 24 इंटू 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो ये कर रहे हैं, क्यू इंटू 60 इंटू 16 इंटू 24 इंटू क्वांटिटी, मिलीग्राम पर लीटर है ना, तो लीटर हमने कर दिया। नाउ क्वांटिटी, क्वांटिटी इज 37 माइनस 12, दिस इज मिलीग्राम, दिस कमिंग इन द मिलीग्राम पर डे, और हमें करना है किलोग्राम पर डे में, सो मिलीग्राम, ग्राम एंड देन किलोग्राम, 10⁻⁶ से इसको डिवाइड कर देंगे होल टर्म। दिस विल गिव द क्वांटिटी ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन किलोग्राम पर डे। एक दिन में कितना हमें किलोग्राम स्लज मिल रहा है, दैट इज 1080 kg पर डे। And we know that 1 gram of alum gives you 0.234 gram of the precipitate, aluminum precipitate। तो यहाँ पे कितना है आपका 23 मिलीग्राम पर लीटर एलम गिव्स यू कितना प्रेसिपिटेट, कितना मिलीग्राम पर लीटर, तो 0.234 इंटू 23, दैट इज कमिंग एज 5.38 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कितना बन जाएगा मिलीग्राम एक लीटर में, तो एक लीटर में बनेगा, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है तो आप पता लगा लोगे। तो आप डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे सेम, तो दिस क्वांटिटी इंटू 0.5 इंटू 1000 लीटर इंटू 24 इंटू 60 पर डे के हिसाब से इंटू 10⁻⁶ यानी किलोग्राम में। तो कितना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कितना प्रेसिपिटेशन बना, दैट इज 232.41 kg पर डे। इतना टोटल सस्पेंडेड सॉलिड था और प्रेसिपिटेशन कितना बना 232.41 किलोग्राम पर डे, इतना जो है आपका बन रहा है प्रेसिपिटेट। Assume the 100% of settlement AlOH3 takes place. Total weight of the solid in the sludges. Total weight कितना हुआ स्लज का, कैसे पता लगाएंगे, ठीक मतलब सस्पेंडेड सॉलिड तो उसी में था, वो तो आप निकाल नहीं रहे हो, वो भी नीचे एक्युमुलेट हो रहा है, और एलम आपने ऊपर से ऐड कर दिया, उसका वेट 232.41 है। टोटल स्लज जो बनेगा, सॉलिड स्लज जो बनेगा वो कितना बनेगा, तो 1080 प्लस 232.41, टोटल स्लज क्वांटिटी इज 1312.41 kg पर डे। दिस मच स्लज इज कमिंग। उन्होंने बोला कि दिस इज द ड्राई स्लज, उन्होंने बोला कि पानी में वेट स्लज में 1% ही सॉलिड स्लज है, 99% क्या वाटर है। तो 1 kg ऑफ सॉलिड प्लस 99 kg ऑफ वाटर गिव्स यू 100 kg ऑफ स्लज। तो ये 1% उन्होंने कहा ड्राई स्लज है। एक kg का पार्ट कौन सा है, ये सॉलिड स्लज, 1312.41 इस kg सॉलिड स्लज, और 99% ये इसका वाटर है, 99% ऑफ दिस प्लस दिस, तो ये हो गया आपका इतना kg ऑफ वाटर आपका हो गया, और टोटल स्लज वेट स्लज कितना हो गया, दिस एडिशन ऑफ दिस 131241 kg ऑफ वेट स्लज। ठीक है, इंटू 100 आपने कर दिया, दैट इज वही आएगा आपका, कितना वेट स्लज आपका बन गया, कितना बना 1,31,240 किलोग्राम वेट स्लज बनना। वॉल्यूम ऑफ स्लज इज, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितना होगा, सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम, सॉरी जितना क्वांटिटी है आपकी स्लज की डिवाइड बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके, इनटू द गामा डब्ल्यू। ये फॉर्मूला आप यहाँ से निकला है, वेट बाय ग्रेविटी इनटू गामा डब्ल्यू।
इक्वल्स टू गिव यू द वॉल्यूम। ओके, आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा इजीली। इज कमिंग 0.436 मीटर क्यूब पर डे। तो सॉलिड का वॉल्यूम कितना हो गया? 0.436 मीटर क्यूब पर डे। वाटर का वॉल्यूम कितना है? तो वाटर का स्लज आपको पता है 12,009, ये आ गया 1,29,928 डिवाइड बाई दी गामा डब्ल्यू। स्पेसिफिक वाटर की 1 होती है, तो 1 इंटू 10⁻³ तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना घेरेगा, कितना मतलब वो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, 0.36 मीटर क्यूब पर डे वॉल्यूम हमें चाहिए होगा। तो वाटर का हमें वॉल्यूम चाहिए होगा 129.9 मीटर क्यूब पर डे। इतना पानी आपको खपाना है और इतना आपको स्लज खपाना है। दोनों का एडिशन अगर आप करेंगे तो इतना वॉल्यूम आपको स्लज मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्लज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। सॉलिड 0.36 और 1.129.9 ये टोटल हो गया आपका 130.36। दिस इज द टोटल व्हाट वॉल्यूम ऑफ स्लज रिक्वायर्ड ड्राई प्लस सॉलिड। और एक कैसे हमने इंडिविजुअल निकाला वॉल्यूम, कैसे निकाला? बाय डिवाइडिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू गामा डब्ल्यू। ओके, दिस इज हाउ वी कैन प्रोड्यूस। पहले तो क्वांटिटी निकालनी है एलएम की, उसके टोटल सस्पेंडेड क्वांटिटी में उसको ऐड कर देना है। ठीक है, इंडिविजुअल आपने ड्राई स्लज निकाल ली, वाटर की निकाल ली, उससे आपने डेंसिटी से डिवाइड करके आपको मीटर क्यूब पर डे में ड्राई मिल गया और वाटर मिल गया इजीली। अगर इसे ऐड करके नहीं कर सकते थे बाद में, क्योंकि वाटर की डेंसिटी अलग है और उसकी डेंसिटी अलग है सॉलिड्स की, तो ये इंडिविजुअल आपने स्पेसिफिक डिवाइड किया तब आपको मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज द न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्लास में दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे और फ्लोकुलेशन मिक्सिंग। ठीक है, ये सब देखते हैं। दिस वाज आई थिंक 8 लेक्चर नंबर 8, not 8 exactly, this is lecture number 9 I think. Next class we'll discuss lecture number 10. Okay, okay, thank you. You can leave.